Good afternoon, aspirants. Very welcome on the platform of Saint Pramod B.Ed College, and under the course BSc B.Ed Integrated course, I am going to take a lecture, Physics Part 1. And today's topic is Legendre's equation. So sometimes this Legendre equation is also called Legendre's solution. So till then we have discussed about the power series method. So any equation, differential equation, can be solved by power series method. So we have seen a couple of examples and we have solved the same. So we are going to discuss the Legendre's equation. So what is this? Actually, this is one of the method of the power series itself, but it is having some exclusive format. So whenever equation will be in that particular format, so we can say this is Legendre's equation. यानी कि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में ये रहेगा. ठीक है, अगर दिया हुआ है कि इसको लीजेंड्रीज इक्वेशन के हिसाब से सोल्व करना है, इसका मतलब है कि वो पार्टिकुलर जो फॉर्मेट है वो आपको मैच करना पड़ेगा, और इसका जो तरीका है सोल्व करने का, दिस इज सेम एज दैट ऑफ पावर सीरीज मेथड. आपको हर एक चीज सेम करना है. ठीक है, केवल इसका जो फॉर्मेट है वो एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है, उसको आपको याद करना है. यू हैव टू रिमेंबर. So what is the format of that Legendre's equation? So write down 1 minus x square d2y upon dx square minus 2x into dy upon dx plus n plus into y equal to 0. So this is the format, this is the standard format you can say for that Legendre's solution. Okay, so इस format का आपको याद रखना. If a question is given, so question will be given in this format. Okay, ये हो सकता है यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दें, यानी कि n के जगह पे कुछ वैल्यू आपको दिया रहेगा कि n इज इक्वल टू समथिंग एट पॉइंट ए बी सी. वहां पे आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन कि सोल्व दिस लीजेंड्री इक्वेशन बाय सीरीज मेथड एट n इक्वल टू at n equal to e. Suppose this is a question, तो अभी इसको सोल्व आप कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो स्टेप्स हमने पावर सीरीज मेथड सोल्व करने के लिए दिया था, सेम स्टेप यहाँ पे लेना है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको? फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कंपेयर विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन p नॉट x d2y upon dx square plus p1x dy upon dx plus p2x into y equal to 0. ठीक है, इससे हमको ये सॉल्व करना है. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे p नॉट x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 minus x square. p1x का वैल्यू क्या हो जाएगा? minus 2x. और p2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? p into p plus 1, as it is given, we have to find out n equal to p. So once you got the value of p naught x, p1x and p2x, तो अगला चीज क्या है? अगला स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में you have to find out the ordinary point. लेकिन इसमें तो ऐसा दिया हुआ नहीं है कि at x equal to this particular point you have to solve this. So in that case you have to consider x equal to 0 और ये चेक करना है कि इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है क्या
नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये ऑर्डिनरी पॉइंट है क्या नहीं है ये चेक करने के लिए ई नॉट एक्स, उसमें हम x का वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब p नॉट x इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट what we have considered x is equal to 0 is an ordinary point and this equation can be solved by power series method। यानी कि यहाँ तक हम आ गए। इसका फिजिबिलिटी भी आपको चेक करना पड़ेगा जो फिजिबल है। एक ही चीज को मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि फिजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 चीज चेक करना है। इक्वेशन मस्ट बी होमोजेनियस, सेकेंड ऑर्डर, linear differential and that of variable coefficient। So all these things we have already discussed in previous class। अब जब ऑर्डिनरी पॉइंट पता चल गया तो अगला पॉइंट क्या है, अगला स्टेप क्या है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। What is the next step? You have to assume the solution। You have to assume the solution। क्या solution assume करना है उसका, y is equal to summation starting from n is equal to 0 to n is equal to infinity a n x raised to n। क्या लिखा है, assume the solution, assume the solution क्या, y is equal to summation of n is equal to 0 to infinity a n x। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे समेशन को तो क्या होता है आपको याद होना चाहिए कि अगर n का पावर जितना कम होता है उतना इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे n का अगर x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये n नीचे आ जाएगा, यहाँ पे n-1 होगा तो इसका पावर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 1 इंफिनिटी a n n x n-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। इसको फिर डबल डिफरेंशिएट करना है तो कॉन्सेप्ट विल बी सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब इसमें से जब इसको x n-1 को डिफरेंशिएट करोगे तो n-1 यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएगा और ये n-1 कन्वर्ट टू n-2 यहाँ यानी कि एक यूनिट से वो और कम हो रहा है तो एक यूनिट से ये बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 1 विल बी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a n n-1 x n-2। ठीक है, तो अभी आपको किसका किसका वैल्यू पता प्राप्त हो गया, y जो आपने एज्यूम किया है सॉल्यूशन, उसके बाद इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन मिला, सेकंड डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन मिला। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y dy upon dx and d2y upon dx स्क्वायर इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे इस वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट करना है। पुट कीजिए, अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे d2y अपॉन ds का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 इंफिनिटी a n n-1 इंटू x रेज़ टू n-2। ओके, माइनस 2x ऑफ dy अपॉन dx का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n x n-1। ठीक है, और प्लस p प्लस 1 इंटू y का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a
अलग अलग कर लो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो n इक्वल टू इंफिनिटी a n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 और माइनस इस x को अंदर ले लो समेशन x स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे n माइनस 2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो x n माइनस 2 और प्लस 2, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी a n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n हो गया। फिर क्या करते हैं यहाँ पे 2 बाहर रखते हैं और फिर x को अंदर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ये n इक्वल टू 1 इंफिनिटी a n और यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसका पावर 1 है और यहाँ पे n माइनस 1 है, तो दोनों जब पावर ऐड होगा तो n माइनस 1 प्लस 1 दोनों कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा n, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस प्लस p इंटू p प्लस 1 इंफिनिटी n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x n इक्वल टू g। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको मैंने क्या किया अलग अलग कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे किया, इस 1 से इसको पूरे में मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गया, इस x स्क्वायर को हमने अंदर ले लिया, उसके बाद फिर ये 2x वाले टर्म को हमने अंदर ले लिया और p इंटू p प्लस 1 इंटू उसको ऐड किया। यहाँ तक समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है याद कीजिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितना भी x है इस इक्वेशन में, जितना भी x है आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है x रेज टू n में, x रेज टू n में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या मेथड यूज करना पड़ता है, इंडेक्सिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो कहां पे इंडेक्सिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं यहां से कहां पे यूज करना पड़ेगा, एक को इस टर्म में यूज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे n-2 है और यहाँ पे आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इंडेक्सिंग का जो है कॉन्सेप्ट केवल एक टर्म में ही यूज होगा, करेक्ट है, और बाकी एज इट इज रहेगा। तो अगर इसमें इंडेक्सिंग लगाते हैं तो यहाँ पे ये x n-2 है, तो इसको xn बनाने के लिए माइनस इसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जहां जहां पे n है वहां पे n+2 आ जाएगा और ये वैल्यू चूंकि हम n+2 यहाँ पे 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो 2 यूनिट कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये इंडेक्सिंग अगर आप करेंगे तो ये n इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी रहेगा, n+2 हो जाएगा, n विल बी रिप्लेस बाय n+2, ये क्या हो जाएगा n+2 इंटू n+1 इंटू x रेज टू n, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे माइनस n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2 इंटू n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n x n प्लस p इंटू p प्लस 1 into summation of n is equal to 0 to infinity a n x n into x n, ओके। यानी कि हम इसमें क्या कर दिए, क्या यूज कर दिए इंडेक्सिंग। क्यों यूज किया, बिकॉज ऑल द पावर ऑफ x शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू n। तो ये अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही टर्म में यूज हुआ है, बिकॉज बाकी सारे जो टर्म था उसमें x रेज टू n पहले से ही था, तो एक टर्म में हमने उसको यूज करके x रेज टू n के फॉर्मेट में लिया। आपको स्टेप याद रखना चाहिए, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स, देन ओनली यू कैन सोल्व द इक्वेशन करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब यहां तक आ गए। इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग है यहाँ पे कितना है n इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना है n इक्वल टू 2, यहाँ पे कितना है n इक्वल टू 1
और यहाँ पे n इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी सेम ऑफ ऑल द समेशन, यानी कि जितने भी समेशन का पार्ट है सबका स्टार्टिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सेम किसके सेम करना है? जो सबसे मैक्सिमम है उसको ही तो हम सेम कर सकते हैं, बिकॉज n इक्वल टू 2 लाने के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस n इक्वल टू 2 मिल जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n इक्वल टू 2 मिल जाएगा, यानी कि इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो n इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो एक्सपेंड करना है तो इसको कितनी बार एक्सपेंड करना पड़ेगा? इसको 2 टर्म एक्सपेंड करने के बाद n इक्वल टू 2 लाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे n इक्वल टू 0 है तो 2 यूनिट एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा तो 1 यूनिट एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसको 2 यूनिट एक्सपेंड करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन गेट द वैल्यूज वेयर ऑल द स्टार्टिंग वैल्यू इज सेम, दैट इज n इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझिए, जब हमने सबका पावर x रेज़ टू n कर दिया तो यहाँ पे x रेज़ टू n है, x रेज़ टू n है, यहाँ पे x रेज़ टू n है, यहाँ पे x रेज़ टू n है। तो अगला स्टेप क्या है कि सबका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपको सेम करना है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। यानी कि सबको अगर सेम करना है तो किसके सेम करना है? जो मिनिमम है उसको नहीं, जो मैक्सिमम है। तो सब में मिलाकर मैक्सिमम कौन सा है? 2 है, यानी कि n इक्वल टू 2 सब में लाना है। तो इसको अगर n इक्वल टू 2 लाना पड़ेगा तो इसको 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। कौन सा 2 बार? एक बार 0 डालो, एक बार 1 डालो। तो अगर 0 डालोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा? देखो यहाँ पे a 0 प्लस 2 यानी कि a इनटू यहाँ पे n की जगह पे 0 डालो, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 यानी कि 2 और यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी कि 1 और x रेज़ टू 0। अब एक बार और एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू क्या डालना पड़ेगा? n इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 डालो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3 और 1 प्लस 1 यानी कि 2 और x रेज़ टू 1। हमने 2 बार एक्सपेंड कर दिया और जो बाकी पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू 2 इंफिनिटी a n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू x रेज़ टू n। यानी कि पहला वाला पार्ट हमने एक्सपेंड कर लिया, दूसरे वाले पार्ट को तो कुछ करना ही नहीं। क्या हो जाएगा ये? माइनस ऑफ n इक्वल टू 2 अप टू इंफिनिटी a n माइनस 1 इंटू x रेज़ टू n। अब तीसरे वाले पार्ट में आते हैं। तीसरे वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? आपको एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गेट द वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम n इक्वल टू 2, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो इसको एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस 2 डाल करके ब्रैकेट देना पड़ेगा। आप n इक्वल टू 1 डालो, इसमें क्या हो जाएगा? a 1 x रेज़ टू 1 और प्लस ये आ जाएगा n इक्वल टू 2 इंफिनिटी a n x n। ठीक है, और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज दिस, इसको भी 2 बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस p इंटू p प्लस 1 और इसको एक्सपेंड करके 2 बार, एक बार 0 डालो तो क्या आ जाएगा? a0 x रेज़ टू 0 प्लस a1 x रेज़ टू 1 प्लस n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n x n। आया समझ में? तो हमने क्या किया? n इक्वल टू 2 वैल्यू लाने के लिए इसको 2 बार एक्सपेंड किया, 2 यूनिट तक। इसको एक बार भी नहीं, इसको एक बार और इसको 2 बार। अब इसको क्या करना है? आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ये बहुत लंबा लग रहा है लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है। लिखते समय कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, यानी कि आपको ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर हर एक चीज का ध्यान रखना है। ओके, दिस नॉट लुक्स इजी, करेक्ट, लेकिन यू हैव टू मेक इट इजी। ओके, अगर कोई भी चीज कठिन है तो उसको अगर आप सोल्व करना चालू कर देंगे तो कोई भी जो कठिन प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाता है। सो यू हैव टू मेक और कीप योर पेशेंस। यहाँ पे पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे आप अगर 1 बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 a0
मैं x टू 0 को 1 लिख रहा हूँ, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 6a3x और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे n इक्वल टू 2 इंफिनिटी, ओके, और a n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू x रेज टू n। यहाँ तक हम आ गए, देखो यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n माइनस 1 इंटू x रेज टू n, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे, माइनस 2, अब इसको मैं माइनस 2 कौन सा लेगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2a1x, अभी माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n x, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म है p प्लस 1, इसको अंदर ले लो, क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू p प्लस 1, ठीक है, और प्लस p इंटू p प्लस 1, ओके, और यहाँ पे n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी a n x n। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको ये सारे x को कॉमन लेना है, सारे x को कॉमन लेना है और सबका जो ये समेशन है उसको एक ही रख देना है, बिकॉज़ सबका समेशन यहाँ पे सेम आ रहा है। सबसे पहले जो कांस्टेंट पार्ट है उसको निकाल लेते हैं, तो ये वाला इसको हम एक साथ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो a नॉट कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 2 प्लस p स्क्वायर प्लस p, a नॉट कॉमन लेंगे तब, फिर a1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2a1x और एक टर्म में रहता है प्लस 6a3x, यानी कि सारे जो कांस्टेंट टर्म है वो एक साथ आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में x रेज टू n सबका कॉमन ले लेना है और समेशन एक ही रखना है, ठीक है। तो समेशन ऐसा समझ लो कि n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, पहले वाले टर्म से हमने ले लिया, माइनस a n इंटू n माइनस 1, दूसरे टर्म से भी ले लिया, तीसरा टर्म हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2a n x रेज टू n, और ये वाला बाहर ले चुके हैं, एक बचेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस p इंटू p प्लस 1 इंटू a n x n, ठीक है। ये सब x n को हम बाहर कर चुके हैं, a n, और सब में मिलाकर से आपको x रेज टू n करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद में अभी मैं सोल्व नहीं करने वाला हूं, यहां तक मैं आपको ला दिया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कोई भी जो x का पार्ट है, कोई भी जो x का पार्ट है उसको बारी बारी से क्या करना है, आपको 0 के बराबर करना है, और जब आप 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको किसका वैल्यू निकलेगा, a2 a3 a4 a5, लेकिन a3 a4 a5 का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, रीअकरेंस रिलेशन। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x रेज टू n का जो गुणक है, कोफिशिएंट है, उसको आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, देन यू विल गेट अ सिंपलीफाइड इक्वेशन और एक्सप्रेशन, और यहां से आपको a n प्लस 2 का वैल्यू निकालना है a n के रेस्पेक्ट में और a n माइनस 1 के रेस्पेक्ट में। जब ये आप निकाल लेंगे तो दैट इज नथिंग बट रीअकरेंस रिलेशन, और यहाँ पे n का जब वेरियस वैल्यू आप डालेंगे तो वैल्यू आपका निकलेगा a3 a4 a5 a6 a7 अप टू सो ऑन, और जब आपके पास इतना वैल्यू आ जाएगा देन आपको क्या करना है, आपको जो एज्यूम किया था सॉल्यूशन y इक्वल टू समेशन ऑफ
n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x n, उसको एक्सपेंड करके क्या हो जाएगा a नॉट प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3 x स्क्वायर x क्यूब प्लस a4x रेज़ टू 4 अप टू सो ऑन। उस वाले इक्वेशन में आपको वैल्यू ये पुट करने हैं और पुट करने के बाद एक a नॉट का पार्ट और एक a1 का पार्ट दोनों का आपको अलग अलग करना है, बिकॉज कि a नॉट एंड a1 विल बी देयर इन द सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। जब इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। सो दिस इज वन ऑफ योर असाइनमेंट। इसके बाद आप इसको फुलफिल करो, आगे लेके जाओ, क्योंकि हर एक ये सॉल्यूशन मैं करके नहीं दूंगा। यू हैव टू सॉल्व ऑन योर्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन दैट। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है, या आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसको आपको इस फॉर्म में लाना है। ओके, सो इन द फिजिक्स दिस इज वन ऑफ योर असाइनमेंट ऑल्सो। अभी पहले भी हमने असाइनमेंट किया है एक, और ये भी असाइनमेंट आपका रहेगा कि following equation has to be solved by legendary solution method। ओके, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, so by tomorrow we will discuss another part, okay, that is Bessel's equation। This is nothing but another form of this series method। okay, तो ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, केवल फॉर्मेट चेंज हुआ है। आपको इसका पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के बाद, ठीक है, सेम जो उसका रूल्स है वो इसमें अप्लाई करना है, जो हमने पावर सीरीज मेथड का अप्लाई किया था। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बता देता हूँ। मैं स्टेप बताऊंगा, इसको सोल्व आपको ऑन योर ओन करना है। इसमें हर एक टाइम में आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें आपको खुद पे सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका स्टेप मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं है। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको जो नॉर्मल इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है, फिर P0x, P1x, P2x का वैल्यू निकालना है। जब ये तीनों वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसका फिजिबिलिटी चेक कर लो एक बार। ये होना चाहिए होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर एंड हैविंग वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये चारों चीज जब हो गया, इसका मतलब फिजिबल है। दिस इक्वेशन इज सोल्व बाय पावर सीरीज मेथड। लेकिन पावर सीरीज मेथड यूज करने के लिए एक चीज आपको और यूज करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट आपको x इक्वल टू 0 चेक करना है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में ऐसा दिया हुआ नहीं है कि आप कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज करना है। तो जो x इक्वल टू 0 है वो आपको एज्यूम करना है इन केस नॉट गिवन। तो x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है क्या नहीं है, इसके लिए आपको P0x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर P0x इज नॉट इक्वल टू 0, इट डज मीन दैट x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व्ड बाय पावर सीरीज मेथड। यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन इसका एज्यूम करना है, y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n x n। इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। कैसे एक्सपेंड करोगे? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x रेज़ टू 4 अप टू सो ऑन। जब आपने y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी a n x n एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने के बाद उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के पहले एक रूल मैं बता देता हूँ कि अगर n का वैल्यू जितना पावर में कम होता है उतना आपका स्टार्टिंग वैल्यू बढ़ जाता है। in the case y इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, वहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a जो x रेज़ टू n है वो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू n इक्वल टू 0 वो 1 हो जाएगा। उसको डबल डिफरेंशिएट करना है d2y/dx स्क्वायर निकालने के लिए, तो n का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। सिंस x n-3 कंपेयर टू x रेज़ टू n-2। ठीक है, ये उसका छोटा सा एक हिंट है जो डिफरेंशिएशन अगर समेशन का आप कर रहे हैं। तो जब ये आप तीनों वैल्यू मिल गया, तीनों वैल्यू कौन सा, y dy/dx d2y/dx स्क्वायर, तो इस तीनों वैल्यू को आपको कहाँ पुट करना है? जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करना है।
in the case of legendary equation, this has to be put in the equation 1 minus x square d2y upon dx square minus 2x dy upon dx plus p into p plus 1 into y, since n is equal to p, that's why I am telling p into p plus 1। इस इक्वेशन में जब आप डालेंगे तो उसका जो अगला स्टेप है कि जितना भी x का जो पावर है वो x रेज़ टू n में कन्वर्ट करना है। x रेज़ टू n में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग मेथड। इंडेक्सिंग मेथड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि पावर में अगर आप कोई भी चीज x रेज़ टू n करने के लिए जोड़ रहे हैं तो आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू इतना घट जाएगा, यानी कि अगर n माइनस 2 को अगर आप x रेज़ टू n करना है तो वहाँ पे 2 यूनिट पावर में बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका जो समेशन का स्टार्टिंग वैल्यू हो वो 2 से 0 हो जाएगा। तो ऐसा करके हम इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग क्यों करेंगे, बिकॉज की ऑल द पावर ऑफ x शुड बी x रेज़ टू n। जब एक बार आपने ऐसा कर लिया तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सारा का जो स्टार्टिंग वैल्यू है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द समेशन शुड बी सेम। तो अगर आपके पास 4 ऐसा टर्म है जिसमें कि समेशन है तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा समेशन है लाइक n इक्वल टू 2, तो जितने भी टर्म है ठीक है उसको आपको n इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, बिकॉज उसको एक्सपेंड करने का रूल है। ठीक है, तो जितना भी लोअर पार्ट है दैट इज n इक्वल टू 0 उसको आप एक्सपेंड करो। अगर n इक्वल टू 2 लाना है और n इक्वल टू 0 से आपको एक्सपेंड करना है तो 2 यूनिट तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर n इक्वल टू 1 है तो आपको 1 टर्म उसका एक्सपेंड करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आपका जितना भी स्टार्टिंग वैल्यू है सारे समेशन का वो सेम आ जाएगा। एक्सपेंड कैसा करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। एक्सपेंड करने के बाद आपके 2 टर्म आएंगे। एक टर्म आएगा जो समेशन से बाहर रहेगा, आउटसाइड फ्रॉम द समेशन एरिया रहेगा, दूसरा समेशन का पार्ट रहेगा। तो जो समेशन के बाहर वाला एरिया रहेगा उसमें अगर x का कोई भी अगर कोफिशिएंट है तो उसको 1 by 1 0 के इक्वेट करना है। अगर इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास a2 a3 इसका वैल्यू मिल जाएगा, उस वैल्यू को नोट कर लें। फिर जो समेशन के अंदर वाला पार्ट है उसमें x रेज़ टू n उसको कॉमन लेंगे और कॉमन करने के बाद जो कोफिशिएंट बचेगा उसको भी 0 की इक्वेट करना है। जब उसको 0 की इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगा, जो रिलेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड पार्ट्स रिलेशन। उस रिलेशन का नाम क्या है, याद है आपको? उस रिलेशन का नाम है दैट इज reoccurrence relation। that is relation is called reoccurrence relation and sometimes it is known as difference equation। तो reoccurrence relation में आपको यही चीज याद रखना है कि a का जो वैल्यू होगा ठीक है वो जो ज्यादा वाला रहेगा लाइक a n+2 should be in the terms of lower value of a like a n or a n-1, और इसका जो स्टार्टिंग फैक्टर रहेगा जहां से समेशन स्टार्ट होता है n का वैल्यू उतना या उतना से अधिक लेना है। फॉर एग्जांपल अगर समेशन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है तो ये जो रिअक्टेंस रिलेशन है इट विल इंप्लाइज फ्रॉम n इक्वल टू 2, ठीक है, या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो रिअक्टेंस रिलेशन में n का वैल्यू जितना हमने कंसीडर किया है समेशन में उससे ज़्यादा डाल करके वेरियस वैल्यू ऑफ n हैज टू बी पुट। अगर उसको आप पुट करेंगे तो a का जो हायर वैल्यू है लाइक a3 a4 a5 a6 a7 इस आप a10 a11 आप टू जितना चाहे आप उतना आप निकाल सकते हैं। जनरली 6 टू a7 टू a6 तक का वैल्यू हम निकालते हैं। जब ये एक बार आपको आ जाए a1 से a0 a1 a2 a3 अप टू a7 इसका वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो मिलने के बाद क्या करना है आपको, जो आपने सॉल्यूशन एज्यूम किया था दैट इज y इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 अप टू इंफिनिटी a n x n उसको एक्सपेंड करेंगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब उस वाले फॉर्म में डालेंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी इक्वेशन है वह a0 और a1 के ही टर्म में आना चाहिए, आपको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए आपको दोनों में से a1 और a1 अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इतना सारा स्टेप मैंने आपको 2 बार बताया है। तो ये जो लीजेंडरी इक्वेशन है ये आपको घर पे बैठ के जो ये इक्वेशन है मैंने आधा सोल्व कर दिया है, आधा आपको सोल्व करना है। मैंने इसका 70% काम कर दिया है, 30% काम आपको करना है। और काम करने के बाद ठीक है उसको आपको एज इट इज रखना है। whenever your summation will be there I will check out this assignment whether you have calculated this equation correctly or not. So for today's
that's all from the equation. Okay, and by tomorrow we will take another part of the equation. And so up to today, that's all. In case of any query, you can ask me in the comment section. We will be giving appropriate answer. Thank you very much.